Hello students, how are you all? Today we will continue our chapter number 4, the theory of the firm under perfect competition. Today's our topic, long run supply curve of a firm. Let us turn to figure 4.9 and derive the firm's long run supply curve. As in the short run case, we split the derivation into two parts. We first determine the firm's profit maximizing output level when the market price is greater than or equal to the minimum long run AC. जब हमारा मार्केट प्राइस ग्रेटर होता है या इक्वल होता है मिनिमम AC के. This done, we determine the firm's profit maximizing output level when the market price is less than the minimum AC in long run. जब long run में हमारा मैक्सिमम आउटपुट लेवल है, मार्केट प्राइस कम होता है या फिर मिनिमम होता है AC के इन लॉन्ग रन. इन केस 1 we will see price greater than or equal to the minimum LRAC, long run AC. Suppose the market price is P1. We can see in this figure 4.9, market price is P1 which exceeds the minimum LRAC, long run AC. Upon equating P1 with LRMC, on the rising part of the LRMC curve, we obtain output level Q1. Note also that the LRAC at Q1 does not exceed the market price P1. Note also that the LRAC at Q1 does not exceed the market price P1. जो हमारा LRAC है वो किसको एक्सीड नहीं कर सकता? मार्केट प्राइस P1 को एक्सीड नहीं कर सकता LRAC. We can see there. Thus, all three conditions highlighted in section 3 are satisfied at Q1. जो हमारी 3 की 3 कंडीशंस है जो हाईलाइट की गई हैं वो किस पर सेटिस्फाइड होती हैं? Q1 पर सेटिस्फाइड होती हैं. Hence, when the market price is P1, the firm supplies in the long run become an output equal to Q1. जब हमारा मार्केट प्राइस P1 है तो हमारी सप्लाई लॉन्ग रन में क्या हो जाएगी? किसके इक्वल हो जाएगी? हमारा आउटपुट Q1 के इक्वल हो जाएगा. इन केस 2, प्राइस लेस देन द मिनिमम LRAC, जब हमारा प्राइस LRAC के मिनिमम, जब हमारी LRAC होती है उसके लेस देन होता है. सपोज द मार्केट प्राइस इज P2. वी कैन सी हियर मार्केट प्राइस इज P2 विच इज़ लेस देन द मिनिमम LRAC, जो कि क्या है, किससे कम है? वो मिनिमम LRAC से कम है. वी हैव argued section C, condition 3 in section 3, that if a profit maximizing firm produces a positive output in the long run, जब हमारी जो फर्म है लॉन्ग रन में प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कब अर्न करती है? जब उसका पॉजिटिव आउटपुट होता है. द मार्केट प्राइस P2 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू LRAC. हमारा मार्केट प्राइस ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल टू किसके होना चाहिए? LRAC के. बट नोटिस दैट फिगर 4.9 दैट फॉर ऑल पॉजिटिव आउटपुट लेवल्स LRAC स्ट्रिक्टली एक्सीड्स P2. वी कैन सी LRAC स्ट्रिक्टली एक्सीड्स P2. जो हमारी LRAC है वो किससे एक्सीड कर रही है? P2 से एक्सीड कर रही है. देखो यहाँ पे ये P2 के ऊपर जा रही है. The firm, in other words, it cannot be the case that the firm supplies a positive output. So when the market price is P2, the firm produces zero output. तो firm क्या produce करेगी? Zero output produce करेगी. Combining cases 1 and 2, we reach an important conclusion. इन दोनों केसेस को देखते हुए हम important conclusion पर पहुँचते हैं. A firm's long run supply curve is the rising part of the LRMC. LRMC.
इन दोनों केसेस को कंबाइन करके लॉन्ग रन सप्लाई कर्व में हमारी जो LRMC है वो राइजिंग हो रही है। वी कैन सी हेयर जो हमारी LRMC है वो ज़्यादा हो रही है, राइजिंग हो रही है। एंड अबव द मिनिमाइजिंग LRAC जो हमारी LRAC है, वी कैन सी जो हमारी LRAC है together with zero output for all prices less than the minimum LRAC. In figure 4.10, the bold lines represents in figure 4.10 the bold lines represent the long run supply curve of the firm. Long run supply curve of the firm. Next is the shutdown point. Shutdown point क्या होता है? We can read here. Previously, while deriving the supply curve, we have discussed that in the short run, the firm continues to produce as long as the price remaining greater than or equal to the minimum of ABC. जो short run में क्या होता है, जो producer produce करता है as long as the price remains greater than, price क्या होते हैं, greater than होते हैं या फिर equal to minimum ABC. इक्वल किसके होते हैं, मिनिमम ABC के इक्वल होते हैं या फिर जो हमारे रिमेन प्राइस है उनसे ग्रेटर होते हैं। देयरफॉर अलोंग द सप्लाई कर्व एज वी मूव डाउन, हम कहाँ डाउन करते हैं, मूव डाउन करते हैं। द लास्ट प्राइस आउटपुट कॉम्बिनेशन एट विच द फर्म प्रोड्यूसेस पॉजिटिव आउटपुट इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम ABC वेयर द SMC कर्व कट्स द ABC कर्व। जहाँ पर हमारा SMC कर्व किसको कट कर रहा है, ABC कर्व को कट कर रहा है। बिलो दिस देयर विल बी नो प्रोडक्शन, यहाँ पर कोई प्रोडक्शन नहीं है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द शॉर्ट रन शट डाउन पॉइंट ऑफ द फर्म। जो ये पॉइंट होता है इसको क्या बोलते हैं, शट डाउन पॉइंट ऑफ द फर्म। इन द लॉन्ग रन हाउ एवर द शट डाउन पॉइंट इज द मिनिमम ऑफ LRAC कर्व। बट लॉन्ग रन में क्या होता है, जो हमारा शट डाउन पॉइंट कौन सा होता है, मिनिमम ऑफ LRAC कर्व। जहाँ पर LRAC कर्व मिनिमम पॉइंट पर होती है वो हमारा क्या होता है, शट डाउन पॉइंट होता है इन लॉन्ग रन। नेक्स्ट इज द नॉर्मल प्रॉफिट एंड ब्रेक इवन पॉइंट। हमें नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है और हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा होता है। वी विल रीड हियर द मिनिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट दैट इज नीडेड टू कीप अ फर्म इन द एग्जिस्टिंग बिजनेस इज डिफाइंड एज नॉर्मल प्रॉफिट। मिनिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट, कोई भी फर्म होती है जो अपना बिजनेस करती है वो प्रॉफिट के लिए करती है, चाहे वो मैक्सिमम लेवल पर रखे प्रॉफिट को अपने, चाहे नॉर्मल लेवल पर रखे, चाहे मिनिमम लेवल पर रखे। यहाँ पर क्या कहा गया है, द मिनिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट दैट इज नीडेड टू कीप अ फर्म। मिनिमम लेवल पर प्रॉफिट रखना ये हर एक फर्म को ज़रूरी होता है, दैट इज और ज़रूरत होती है, दैट इज नीडेड टू कीप अ फर्म इन द एग्जिस्टिंग बिजनेस। बिजनेस में एग्जिस्ट करना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो कम से कम मिनिमम लेवल पर प्रॉफिट रखें। इज़ डिफाइंड एज नॉर्मल प्रॉफिट। इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। जो एक बिजनेस मिनिमम लेवल पर अपना प्रॉफिट लेके चलता है उसको नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। अ फर्म दैट डज नॉट मेक नॉर्मल प्रॉफिट इज़ नॉट गोइंग टू कंटिन्यू इन बिजनेस। अगर कोई फर्म नॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं लेकर चलती है तो अपने बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर सकती है। Normal profits are therefore a part of the firm's total cost. It may be useful to think of them as an opportunity cost for entrepreneurship. हम इसमें ये भी सोच सकते हैं जो ये अपॉर्चुनिटी होती है ये कौन सी कॉस्ट होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है और एक ही हर एक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए होती है। Profit that a firm earns over and above the normal profit is called the supernormal profit. जो कोई फर्म प्रॉफिट अर्न करती है वो अगर वो नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा अर्न कर ले तो उन प्रॉफिट्स को हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। इन द लॉन्ग रन अ फर्म डज नॉट प्रोड्यूस इफ इट अर्न्स एनीथिंग लेस देन द नॉर्मल प्रॉफिट। लॉन्ग रन में अगर फर्म कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करती है इफ़ इट अर्न्स एनीथिंग लेस देन द नॉर्मल प्रॉफिट, और वो क्या अर्न करती है, लेस देन द नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट से भी कम अर्न करती है। इन द शॉर्ट रन हाउ एवर
it may produce even if the profit is less than this level. The point on the supply curve at which a firm earns only normal profit is called the break-even point of the firm. इसमें क्या होता है, जो आपका पॉइंट होता है सप्लाई कर्व में जहाँ पर वो नॉर्मल प्रॉफिट को अर्न करती है, उसको कौन सा पॉइंट बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट. The point of minimum average cost at which the supply curve cuts the LRAC curve, in short run SAC curve, is therefore the break-even point of a firm. जहाँ पर मिनिमम एवरेज कोस्ट पर हमारी LRC कर्व को सप्लाई कर्व कट करती है, वो हमारा क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट होता है. अपॉर्चुनिटी कोस्ट. इन इकोनॉमिक्स one often encounters the concept of opportunity cost. Opportunity cost of some activity is the gain foregone from the second best activity. ये हमारी क्या होती है? सेकेंड बेस्ट एक्टिविटी होती है. सपोज यू हैव ₹1000 विच यू डिसाइड टू इन्वेस्ट इन योर फैमिली बिजनेस. आपके पास ₹1000 है और आप उनको अपने फैमिली बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं. वॉट इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ योर एक्शन? आपकी इस एक्शन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? इफ़ यू डू नॉट इन्वेस्ट द मनी, अगर आप मनी इन्वेस्ट नहीं करते हैं, यू कैन आइदर कीप इट इन द हाउस सेफ विच विल गिव यू ज़ीरो रिटर्न, और यू कैन डिपॉजिट इट इन आइदर बैंक. अगर आप उस पैसे को अपने घर में रखते हैं तो आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा, और अगर आप उसको बैंक में जमा करते हैं, बैंक 1 और बैंक 2, इन विच केस यू गेट एन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% और 5%. अगर बैंक 1 में आप डिपॉजिट करते हैं तो आपको 10% इंटरेस्ट मिलता है. अगर आप बैंक 2 में करते हैं तो आपको 5% इंटरेस्ट मिलता है. सो द मैक्सिमम बेनिफिट दैट यू मे गेट फ्रॉम अदर अल्टरनेटिव्स एक्टिविटीज इन द इंटरेस्ट फ्रॉम द बैंक 1. तो इन सबको देखते हुए आपको क्या अल्टरनेटिव चूज़ करना चाहिए? बैंक 1 चूज़ करना चाहिए. बट दिस अपॉर्चुनिटी विल नो लॉन्गर बी देयर वंस यू इन्वेस्ट द मनी इन योर फैमिली बिजनेस. बट जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली है लॉन्गर नहीं है देयर वंस यू इन्वेस्ट द मनी इन योर फैमिली बिजनेस. द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग द मनी इन योर फैमिली बिजनेस is therefore the amount of foregone interest from the bank 1. Next is determinants of a firm supply curve. In the previous section, we have seen that a firm supply curve is a part of its marginal cost curve. ये किसका पार्ट है? मार्जिनल कोस्ट कर्व का पार्ट है. Thus, any factor that affects firm's marginal cost curve is of course a determinant of its supply curve. In this section, we discuss 2 such factors. इसमें हम 2 factors को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, कि हमारी टेक्नोलॉजी में कितनी प्रोग्रेस हो रही है और वो कैसे हमें आउटपुट्स देने में हमारी हेल्प कर रही है. वी रीड ऑल दिस हेयर. सपोज अ फर्म यूजेस 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. सपोज करते हैं हम यहाँ पर कि जो भी किसी ने फैक्ट्री लगाई है वो 2 फैक्टर्स को यूज़ कर रहा है अपनी प्रोडक्शन के लिए. कौन कौन से हैं वो? कैपिटल एंड लेबर. कैपिटल को और लेबर को. टू प्रोड्यूस अ सर्टेन गुड, किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए. सब्सिक्वेंट टू एन ऑर्गेनाइजेशनल इनोवेशन बाय द फर्म, द सेम लेवल ऑफ कैपिटल एंड लेबर नाउ प्रोड्यूस मोर यूनिट ऑफ आउटपुट. यहाँ पर क्या करते हैं? सेम लेवल ऑफ कैपिटल का लेवल भी सेम है और लेबर का, वो ज़्यादा आउटपुट यूनिट दे रहे हैं. Put differently, to produce a given level of output, the organizational innovation allows the firm to use fewer units of output. It is expected that this will lower the firm's marginal cost at any level of output. There is a rightward or downward shift of the MC curve. At this firm supply curve is essentially a segment of the MC curve. Technologically progress shifts the supply curve of the firm to the right. At any given market price, the firm now supplies more unit of output. अगर हम अपनी टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस करते हैं तो हमारा क्या होता है? जो सप्लाई कर्व है वो शिफ्ट हो जाता है राइट की तरफ. एट एनी गिवन मार्केट प्राइस, किसी भी मार्केट प्राइस पर जो हमें दिया गया है, द फर्म नाउ सप्लाइज मोर यूनिट ऑफ आउटपुट्स. जो हमारी फर्म है वो ज़्यादा
आउटपुट की यूनिट्स को सप्लाई कर सकती है। नेक्स्ट वन इज इनपुट प्राइजेस। अ चेंज इन इनपुट प्राइजेस ऑल्सो अफेक्ट्स अ फर्म सप्लाई कर्व। जो हमारी इनपुट के प्राइजेस है वो किसको अफेक्ट करती है, हमारे सप्लाई कर्व को इफेक्ट करती है। इफ द प्राइस ऑफ एन इनपुट इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइजेस। अगर हमारे इनपुट के प्राइस बढ़ते हैं तो हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ती है। द कॉन्सिक्वेंट इंक्रीज इन द फर्म्स एवरेज कॉस्ट एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट इज यूजुअली accompanied by an increase in the firm's marginal cost at any level of output. There is a leftward shift of the MC curve. Upward कहाँ पर शिफ्ट होती है, अपवर्ड शिफ्ट होती है। This means that the firm supply curve shift to the left. इसका मतलब क्या है, जो हमारा फर्म सप्लाई कर्व है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है एट एनी गिवन मार्केट प्राइस, जो हमारे मार्केट प्राइस दिया गया है। द फर्म नाउ सप्लाइज फेवर यूनिट ऑफ आउटपुट्स। इम्पैक्ट ऑफ अ यूनिट टैक्स ऑन सप्लाई। अ यूनिट टैक्स इज अ टैक्स दैट द गवर्नमेंट इम्पोजेस पर यूनिट सेल ऑफ आउटपुट। यूनिट टैक्स क्या होता है, जो गवर्नमेंट लगाती है सेल ऑफ आउटपुट पर। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट द यूनिट टैक्स इम्पोज बाय द गवर्नमेंट इज ₹2। हम सपोज करते हैं कि गवर्नमेंट ने एक यूनिट पर कितना लगाया, ₹2 लगाया है unit tax. Then if the firm produces and sells 10 units of the good, अगर firm 10 units goods की sell करती है, the total tax that the firm must pay to the government is 10 multiplied by ₹2 is equal to total ₹20. How does the long run supply curve of firm change when a unit tax is imposed? Let us turn to figure 4.11. Before the unit tax is imposed, LRMC and LRAC are respectively the long run marginal cost curve and the long run average cost curve of the firm. Now suppose the government puts in place a unit tax of ₹T. हम जो टैक्स है हमारी यूनिट पे हम उसको T मान लेते हैं। Since the firm must pay an extra ₹T for each unit of the good produced, the firm's long run average cost and long run marginal cost at any level of output increase by T. तो जो हमारी लॉन्ग रन में एवरेज कॉस्ट है और मार्जिनल कॉस्ट है वो किससे इंक्रीज हो जाएगी, ₹T से इंक्रीज हो जाएगी। इन फिगर 4.11 LRMC and LRAC are respectively the long run marginal cost curve and the long run average cost curve of the firm upon imposition of the unit tax. Recall that the long run supply curve of the firm is the rising part of the LRMC curve from and above the minimum LRAC together with zero output for all prices less than the minimum LRAC. Using this observation in figure 4.12, it is immediate that SO, S0 and S1 are respectively. We can see here the long run supply curve of the firm before and after the imposed of the unit tax. हमें लॉन्ग रन में हमारी सप्लाई कर्व दिखाई गई है जो कि टैक्स के साथ है और विदाउट टैक्स भी है। नोटिस दैट द यूनिट टैक्स शिफ्ट्स द फर्म्स लॉन्ग रन सप्लाई कर्व टू द लेफ्ट। इसमें आप नोटिस कर सकते हैं जो हमारे टैक्स के बाद जो हमारे लॉन्ग रन में है सप्लाई कर्व शिफ्ट हो गया, कहाँ पर शिफ्ट हो गया, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया। At any given market price, the firm now supplies fewer unit of output. Next one is market supply curve. Market supply curve क्या होता है? सबसे पहले मार्केट सप्लाई क्या होती है? मार्केट सप्लाई वो होती है जो हम मार्केट में अपने आउटपुट को सप्लाई करते हैं। The market supply curve shows the output level that firm in the market produce in aggregate corresponding to different value of the market prices. Plotted on y-axis. इसमें क्या होता है, जो फर्म होती है वो क्या करती है, मार्केट प्रोड्यूस इन एग्रीगेट कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ द मार्केट प्राइस। डिफरेंट वैल्यू जो मार्केट प्राइस की होती हैं उन पर अपने आउटपुट को सेल करती है। हाउ इज अ मार्केट सप्लाई कर्व डिराइव्ड? मार्केट सप्लाई कर्व कैसे डिराइव्ड होगा? कंसीडर अ मार्केट विद एन फर्म। हम मार्केट में अपनी फर्म को एन लेते हैं, फर्म 1, फर्म 2, फर्म 3 एंड सो ऑन।
सपोज द मार्केट प्राइस इज फिक्स्ड एट पी, मार्केट प्राइस को हमने फिक्स किया है पी पर, देन द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द एन फर्म्स इन एग्रीगेट इज सप्लाई ऑफ फर्म 1 एट प्राइस पी, then the output produced by the n firm in aggregate is supply of firm 1 at price P plus supply of firm 2 at price P plus supply of firm n at price P, and means so on. In other words, the market supply at price P is the summation of the supplies of individual firms at that price. Let us now construct the market supply curve geometrically with just two firms in the market, firm 1 and firm 2. The two firms have different cost structures. जो two firms हैं उनके different cost structures हैं. Firm 1 will not produce anything if the market price is less than P1. कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करती है जब उसका मार्केट प्राइस क्या होता है, कम होता है P1 से. While firm P2, वहीं पर फर्म जो P2 है विल नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग, कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करती है इफ़ द मार्केट प्राइस इज लेस देन P2, जब उसका मार्केट प्राइस P2 से कम होता है. एज्यूम ऑल्सो दैट P2 इज ग्रेटर देन P1. इन पैनल ए ऑफ फिगर 4.13 वी हैव द सप्लाई कर्व ऑफ फर्म 1 डिनोटेड बाय S1. इन पैनल बी वी हैव द सप्लाई कर्व ऑफ फर्म 2 डिनोटेड बाय S2. Panel C of figure 4.13 shows a market supply curve denoted by SM. When the market price is strictly below P1, both firms choose not to produce any amount of the good. Hence, market supply will also the zero for all such prices for a market price greater than or equal to P, but strictly less than P2. Only firm 1 will produce a positive amount of the good. Therefore, in this range, the market supply curve coincides with the supply curve of firm 1. For a market price greater than or equal to P2, both firms will have positive output levels. For example, consider a situation wherein the market price assume the value P3. Observe that P3 exceeds P2. Given P3, firm 1 supplies Q3 units of output while firm 2 supplies Q4 units of output. So the market supply at price P3 is Q5, where Q5 is equal to Q3 plus Q4. Notice how the market supply curve SM is in panel C is being constructed. We obtain SM by taking a horizontal summation of supply curve of the two firms in the market S1 and S2. Here we see figure 4.13, the market supply curve panel. A क्या शो कर रहा है? Shows the supply curve of firm 1. A शो कर रहा है हमें firm 1 का supply curve. Panel B shows the supply curve of firm 2. पैनल बी हमें शो कर रहा है फर्म 2 का सप्लाई कर्व. पैनल सी शोज अ मार्केट सप्लाई कर्व, जो पैनल सी है वो मार्केट सप्लाई का कर्व शो कर रही है, विच इज ऑब्टेन बाय टेकिंग अ हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ सप्लाई कर्व ऑफ द टू फर्म्स. वी कैन सी हियर. इट शुड बी नोटेड दैट द मार्केट सप्लाई कर्व हैज बीन डिराइव्ड फॉर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट. कौन सी नंबर मार्केट होती है? फिक्स्ड फर्म्स होती है मार्केट में. एज द नंबर ऑफ फर्म्स चेंज द मार्केट सप्लाई कर्व शिफ्ट एज वेल. जैसे जैसे फर्म में चेंजेस होते हैं मार्केट में, वैसे वैसे ही हमारा जो मार्केट सप्लाई कर्व है वो शिफ्ट हो जाता है. स्पेशली इफ द नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट इंक्रीजेस. अगर हमारी मार्केट में फर्म्स के नंबर में इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट होता है, द मार्केट सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द राइट और लेफ्ट. अगर हमारी मार्केट में फर्म्स एंटर करती हैं, इंक्रीमेंट होता है, तो हमारा जो मार्केट सप्लाई कर्व है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है. अगर हमारी मार्केट में जो फर्म्स है वो डिक्रीज होती हैं तो हमारा जो मार्केट सप्लाई कर्व है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है. वी नो सप्लीमेंट द ग्राफिकल एनालिसिस गिवन अबव विद अ रिलेटेड न्यूमेरिकल एग्जाम्पल. कंसिडर अ मार्केट विद टू फर्म्स, फर्म 1 and firm 2. Let the supply curve of firm 1 be as follow. S1P is equal to, this one is P minus 10, P 10. Notice that
S1P indicates that one firm 1 produces an output of 0 if the market price P is strictly less than 10 और firm और 2 क्या है, firm 1 produces an output of P minus 10. Here we see, if the market price P is greater than or equal to 10, let the supply curve of firm 2 be as follows. We can see here, the interpretation of S2P is identical to that of S1P and is hence omitted. Now the market supply curve SMP simply sums up the supply curve of the two firms. In other words, SMP is equal to S1P plus S2P. But this means that SMP is as follows. Here we solve that. Next one is price elasticity of supply. The price elasticity of supply of a good measure the responsiveness of quantity supplied to changes in the price of the good. More specifically, the price elasticity of supply, denoted by ES, is defined as follows. Price elasticity of supply, ES, is equal to percentage change in quantity supplied by percentage change in price. Triangle Q by Q multiply by 100 divided by triangle P by P multiply by 100 is equal to, हमारी इक्वेशन क्या बनती है, 100 से 100 कट हो गया, triangle Q by Q multiply P by triangle P, where triangle Q is the change in quantity of goods supplies to the market as market price changes by triangle P. ट्रायंगल पी क्या शो कर रहा है कि हमारे मार्केट में कैसे कैसे प्राइजेस चेंज हो रहे हैं, और ट्रायंगल क्यू क्या शो कर रहा है कि हमारी जो क्वांटिटी है गुड्स की वो किस क्वांटिटी में सप्लाई हो रही है मार्केट में. टू मेक मैटर कंक्रीट कंसीडर द फॉलोइंग न्यूमेरिकल एग्जाम्पल. सपोज द मार्केट फॉर क्रिकेट बॉल इज परफेक्टली कॉम्पिटिटिव. व्हेन द प्राइस ऑफ अ क्रिकेट बॉल इज ₹10, let us assume that 200 cricket balls are produced in aggregate by the firm in the market. अगर हम उसका प्राइस 10 लेके चले हैं तो हम कितने एग्रीगेट उसकी प्रोड्यूस कर रहे हैं, 200. व्हेन द प्राइस ऑफ अ बॉल राइजेस टू ₹30, अगर बॉल का प्राइस बढ़ रहा है, ₹30 हो रहा है, लेट अस एज्यूम दैट 1000 क्रिकेट बॉल्स आर प्रोड्यूस इन एग्रीगेट बाय द फर्म्स इन द मार्केट. तो कितनी उसकी प्रोडक्शन बढ़ गई है, 1000 बढ़ गई, 1000 तक हो गई है. द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड मार्केट प्राइस कैन बी एस्टिमेटेड using the information summarized in the table below. Price of cricket balls P1 10 और न्यू प्राइस क्या है 30. ऐसे ही क्वांटिटी ऑफ क्रिकेट बॉल की क्या है, ओल्ड क्वांटिटी है 200 और न्यू क्वांटिटी है 1000. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, ट्राइंगल Q by Q1 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1 बाय Q1 मल्टीप्लाई बाय 100. 1000 माइनस 200 बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 100 को सोल्व करेंगे कटवट करके तो 400 आ जाएगा. ऐसे ही परसेंटेज चेंज इन मार्केट प्राइस, ट्राइंगल P बाय P1 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड देयर इज P2 माइनस P1 बाय P1 मल्टीप्लाई बाय 100. न्यू प्राइस है 30 और ओल्ड है 10 माइनस 10 बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100 और आंसर आ गया 200. देयरफॉर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज 400 बाय 200 इज इक्वल टू 2. When the supply curve is vertical, supply is completely insensitive to price and elasticity of supply is 0. In other words, when supply curve is positively sloped with a rise in price, supply rises and hence the elasticity of supply is positive. Like the price elasticity of demand, the price elasticity of supply is also independent of units. The geometric method. Consider the figure 4.14. There is your figure. Panel A shows a straight line supply curve. जो panel A है वो क्या show कर रहा है, straight line supply curve show कर रहा है. S is a point of the supply curve. S क्या है, supply curve का point है. It cuts the price axis at its positive range and as we extend the straight line. We can see here. It cuts the quantity axis at M, which is at its negative range, जो क्या है इसकी negative range में है. The price elasticity of the supply curve at the point S is given by the ratio MQ0 by OP0. We can see
For any point S on such a supply curve, we see that MQ0 greater than OQ0, the elasticity of any point on such a supply curve therefore will be greater than 1. In panel C, we can see we consider a straight line supply curve. We can see a straight line supply curve and S is a point on it. S is a point on it. It cuts the quantity axis. It cuts the quantity axis at M, which is at positive range. Again, the price elasticity of this supply curve at the point S is given by the ratio MQ0 by OQ0. Now MQ0 smaller than OQ0 and hence ES greater than 1. S can be any point on supply curve and therefore at all points on such a supply curve ES greater than 1. Now we come to panel B. अब हम किस पैनल पे आते हैं? B पैनल पर आते हैं. Here the supply curve goes through the origin. Supply curve कहाँ जा रहा है? Origin पर जा रहा है. We can imagine that the point M has coincided with the origin here. MQ0 has been equal to OP0. The price elasticity of this supply curve is the point S is given by the ratio OQ0 by OQ0, which is equal to 1. At any point on a straight line, supply curve going through the origin price elasticity will be 1. Price elasticity associated with straight line curve, supply curve. In panel A, price elasticity ES at S is greater than 1. In panel B, price elasticity at S is equal to 1. In panel C, price elasticity at S is less than 1. Thank you so much for today. Please subscribe our Nagin channel. Good night everyone. Bye bye.